So hello everyone. So today our topic is recursion. So recursion is considered as a very complex topic. Okay. So definitely it is a complex one, and you need to have some practice. Okay. To understand it, you need to have some practice. Okay. Without practice, you cannot understand that how a recursion function works. Okay. So let's just before that, I recall that one thing I can also mention regarding the pointer. So we move back to our earlier topic, that is pointer, and I mention you have one more point. Okay. So in pointer we studied that suppose there is a variable integer I. Okay, and suppose there is a variable integer I, and we also initialize it. Okay, and now suppose if I want to create a pointer of this integer variable I, so what I do, I write integer pointer p. Okay, and that is equal to address of I. Okay, and we also saw that if I try to print, then there are two methods to print it. Okay, printf percentage d, and the one is I. This is one method to print the value of I, and the another method to print the value of I is star p. Okay, so this we discussed in our yesterday's class. Okay, now last class we saw that there are two methods by which I can print the value of I. One is the variable I, and another is the pointer to the I. Star p is equal to address fi. So the same two methods can also be used to assign some value. Like suppose if I is equal to 2, and if I write here star p is equal to 3. Okay, so it is same as I is equal to 3. So whether I write I is equal to 3 or I write star p is equal to 3, they both are the same thing. Okay, so this is a comment. Okay, so suppose this is commented part. Okay, so the actual statement is this, and if I try to print f percentage d and I. Okay, and I, so the output will be 3. Okay, so it should be clear. And if I write star p is equal to 3, which is definitely equal to I equal to 3. Okay, which is equal to I is equal to 3. So if I try to print value of I, printf percentage di, it will print 3, not 2. Okay, so the same thing you can use to assign the values also. Okay, so this was the thing I have mentioned. The pointer is not discussed in the detail. Okay, just 2-3 points are given in the book, so we have covered those points. And now let's move to the next topic, which is recursion. That is very important. Okay, if you want to understand it, then you have to practice a lot. Otherwise, finally you have to remember that what is the algorithm, and you will just remember that. That will also help in exam, because this time paper will not be hard. So if you want to understand, then you can understand. Otherwise, learn the algorithms. Okay, because the paper will not be hard, and direct questions are expected to come from the book. So let us see what is a recursion. So in your 11th class, basically your foundation is not good. Okay, in 11th class you have not studied properly that what are functions basically. So that will be a very difficult for you to understand that what is recursion and how it works, because it need a basic understanding of a function, that what is a function and how can you make a user defined function. So before moving to the recursion, first we need to understand that what is a function. Okay, so before understanding the recursion, first we need to understand what is a function, and in fact we have to understand what is our user defined function. And this is a 11th class topic, user defined function. So to understand a recursion, first we need to understand the user defined functions. Okay, and this is a 11th class topic, so you should be aware of that. But still I will make you understand. I will explain a concept so that you can understand that how you can create a user defined function. Once we understand a user defined function, then only we can understand recursion. Okay, so let's first see what is a function, and then we will see what is a user defined function, and then we will see how to create a user defined function. So function is basically, you have already used the functions
functions like printf, we have already used. Printf is a function that we have used. This is one function we have used. Another function is scanf. Okay, scanf is one more function that we have used. So these two functions we have used. Okay, so these two functions we have used. So they are basically built-in functions. Okay, they are already available in the library stdio.files. These two functions are already available to us via the file #include stdio.h. तो stdio.file में ये दोनों functions हैं. ये user defined function नहीं है, built-in function है, already available है. Now we move to what are user defined function. कि now the question is how to create your own function. ठीक है, हमें अपना खुद से कोई function बनाना है. How to do that? Let us see first. Once you understand that, then only we can move to the recursion, how a recursion works. So let us see first how to create a user defined function. ठीक है, so instead I should write create a user defined function. The topic is create a user defined function. User defined function. Suppose I want to create a function sum that adds two number. Okay, so I want to create a function sum. ठीक है, like printf, like scanf, I want to create a function sum that takes two numbers. Okay, one is x, another is y. Okay, that takes two numbers x and y, or instead I should write a and b. Okay, because it will later create confusion. So I want to write a function sum that will take two integers a and b, and it will return the value, it will return the sum of these two numbers. So suppose what I want to do, I want to write a program, like suppose I have written a program. This is my void main. Okay, so what I wanted to do, I want to write, I want to take two variables, integer x equal to 2 and y equal to 3. So I have taken two variables, integer x equal to 2 and y equal to 3. Okay, now what I want to do, I want to call this function sum a comma b. So what it will do, I will just write do printf %d, and I will write here sum x comma y. Okay, so what it will return, so finally the output window will have 2 plus 3, that is 5. So on the output window I will get 5. Okay, I have not written get ch. Okay, so now I will avoid these two things. Okay, include stdio.h, conio.h, get ch. So these things you have to remember. I will just focus on the middle part. Okay, so I have created two variable x equal to 2, y equal to 3. Okay, and now I want to printf %d sum x comma y. So I want the output 5. ठीक है, ये फंक्शनैलिटी मैं अपने आप में चाहता हूँ. ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो वेरिएबल ले रहा हूँ, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, और मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको जब भी मैं कॉल करूँ ना, ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जिसको जब भी मैं कॉल करूँ तो ये दो वैल्यूज मैंने इसमें पास करी है, उनका जो सम है वो रिटर्न कर दे ना. तो यही वही फंक्शन हो गया जैसे हमने स्ट्रिंग कैट यूज करा था, स्ट्रिंग लेन यूज करा था ना, तो सेम ही फंक्शन है. जैसे strcat एक फंक्शन था, strlen एक फंक्शन था, है ना, strcpy एक फंक्शन था. तो सारे फंक्शन हम ऐसे ही कॉल कर रहे थे, है ना, ऐसे कॉल कर रहे थे. तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक फंक्शन बनाऊं सम और उसको इस तरह से कॉल कर लूं, है ना. तो ये जो बेसिकली होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो इस तरह से मैं देखता हूं कि अब कैसा एक अपना फंक्शन बनाना है. ठीक है, तो ये मैंने करा कि सम x कॉमा y इट विल प्रिंट 5. आई वांट दिस. ओके, मुझे ये चाहिए कि ये 5 प्रिंट करे. तो अभी तो मैंने केवल इसको कॉल किया, इस फंक्शन को बनाया नहीं है ना. जैसे मैं स्ट्रिंग कैट को मैंने कॉल किया था ना, इसको बोलते हैं कॉल करना. तो स्ट्रिंग कैट को मैंने कॉल किया था, लेकिन वो बना हुआ कहाँ है, वो बना हुआ तो था स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, है ना. ये मैंने कॉल किया लेकिन ये बना हुआ तो है ही नहीं, तो इसको बनाना है अब. ठीक है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं देखो. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेम ही चीज को यही मैंने बताया था, क्योंकि ये जो है दो इंटीजर में पास करवा रहा हूँ, तो ये जो रिटर्न भी मैं इंटीजर ही करवाऊंगा. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है तीसरा तरीका ये मैंने बताया था, है ना. अब जो चीज मैं बता दूंगा बार बार ऐसे रिपीट नहीं करूंगा ना, आप उसको लर्न कर लो कि हाँ ये मैंने पहले बता दी थी. ये कैरेक्टर में भी, हाँ बिल्कुल कैरेक्टर में भी हो सकता है ना. आपको दूसरा फंक्शन बना सकते हो कोई कैरेक्टर वाला, कोई दो कैरेक्टर का फंक्शन बना लो, है ना. फंक्शन कैसे भी बना सकते हैं अपन, जो भी. स्ट्रिंग लेन का खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं ना अपन. strlen का मैं खुद का फंक्शन भी बना सकता हूँ ना.
ये अगर चाहो तो मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूं कि ये वाला फंक्शन कैसे होगा। एग्जाम्पल देखेंगे है ना, अभी देखो ये कैसे कैसे अपन देखेंगे। अभी स्ट्रिंग लाइन का खुद का एक फंक्शन बनाकर भी दिखा दूंगा मैं कि स्ट्रिंग लाइन का खुद का एक फंक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। अभी तो ये बना हुआ है पहले से, लेकिन अगर मैं खुद से बनाना चाहता हूं तो मैं बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं ये फंक्शन, ठीक है। तो देखो, तो मैंने कहा सम में भी दूसरी चीज में क्या कर सकता हूँ कि सेम ही चीज कर सकता हूँ। मैंने लिखा इंटीजर और x और y का सम मैं मान लो z में ले लेता हूँ, तो z इज इक्वल टू सम और मैंने लिखा x, y, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन सपोज कि दोनों को ऐड करके मेरे को कोई इंटीजर रिटर्न कर देगा, तो वो मैंने आंसर किसी इंटीजर में ले लिया z में। एंड नाउ आई कैन प्रिंट दैट printf printf %d and here I can write z, okay. So it will print on the output window, it will print 5. If x equal to 2, y equal to 3, then it sum will print 5, ठीक है। So both of the things I can, okay, so I can club these two statement into one। मतलब ये जो चीज है मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और इसको एक वेरिएबल में लेकर भी लिख सकता हूँ। ये पहले भी मैंने बताई थी ना, तो ये नोट कर लिया करो ना, बार बार रिपीट मत करवाया करो। तो ये तो हुआ देखो सम फंक्शन। अब मेरे को सम फंक्शन बनाना है बेसिकली, है ना। आई हैव जस्ट कॉल्ड द सम फंक्शन बट नाउ आई हैव टू क्रिएट इट। तो क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन इस तरह से बनाना पड़ेगा ना। इसी फाइल में नीचे चलेंगे ना, इसी फाइल में नीचे की तरफ लिखेंगे इसी फंक्शन को। ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसी फाइल में ना। तो ये मेरा कंटिन्यू हो रहा है ना, यहाँ पर ये मेरा पैरेंथेसिस वॉइड मेन तो है, ये वाला मेरा बंद हो गया। और अब इसी के नीचे जो है मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। कैसे लिखना स्टार्ट करूंगा, ऐसे इंटीजर सम, और यहां मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर a और मेरा है इंटीजर b, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये ठीक है, बस ये है, आपको दिख रहा है पूरा। देखो यहां पर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये एक फंक्शन आएगा वॉइड मैन है ना। तो देखो इधर ये वॉइड मैन है, ये मैंने लिखा, फिर इसके नीचे ये मेरा मेन फंक्शन था, ठीक है। तो मेन क्या था, एक फंक्शन है ना, मेन भी एक फंक्शन है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सम में अपना एक फंक्शन लिख रहा हूँ। तो एक फंक्शन के नीचे अब ये दूसरा मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। ये वॉइड मैन जो है पूरा बंद हो गया और मैंने उसके नीचे एक दूसरा फंक्शन अपना लिख दिया, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने बस ये दिखा दिया कि इस तरह से आएगा। अब मैं यहाँ पूरा लिख कर दिखाऊंगा आपको कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ बस मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, लास्ट लाइन लिखी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं आपको पूरा लिखकर बताऊंगा कि ये जो दोनों लाइंस है इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या होगा ना। तो देखो अब यहाँ जो बीच की लाइंस है यहाँ पर लिख नहीं सकते, जगह नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सो दिस वे वी क्रिएट ए फंक्शन। सो सम, यहाँ पर आई विल राइट इंटीजर a एंड इंटीजर b, ठीक है। एंड आई विल रिटर्न हेयर, रिटर्न a प्लस b, ठीक है। बस दिस इज, सो सेम थिंग आई कैन राइट हियर, ओके। यहां पर ही लिख देता हूं फिर मैं इसको। मैंने लिखा रिटर्न a प्लस b, ठीक है। बस यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं पर ही आ गया, ठीक है। बस तो ये आपका जो है फंक्शन हो गया। अब देखो यहां पर ऊपर में क्या लिखूंगा, क्योंकि जब एक फंक्शन नीचे लिखते हैं ना तो इसकी ऊपर है ना एक, इसको इस लाइन को ऊपर कॉपी कर देते हैं, बस ये ध्यान में रखो। तो ये जो लाइन है ना मेरी, इसको कॉपी कर दूंगा ऊपर, बस इंटीजर सम, और वेरिएबल भी मत लिखो, केवल इंटीजर कॉमा इंटीजर लिख दो और इसे बंद कर दो। बस ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई नीचे कोई इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। बस ऊपर वही आपका आ जाएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। जो भी कॉनियो वगैरह आप लिखोगे वो सब ऊपर आ जाएगा, stdio.h, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया ना। आप इसको रन करा के देखना तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है आपका जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो मैंने खुद से अपना एक सम फंक्शन लिख दिया ना। तो जैसे ही देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मैंने एक फंक्शन है ना, इस तरह से ये ऊपर, जब नीचे में कोई फंक्शन लिखूंगा तो ऊपर मेरे को इस तरह से ये लाइन लिखनी पड़ती है। फंक्शन की पहली वाली लाइन जो है इस तरह से लिखनी पड़ती है ना, तभी वो वर्क करता है। तो मैंने क्या लिखा, ये मेरा मेन फंक्शन है, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए x एंड y। फिर मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू सम x कॉमा y, फिर मैंने z को प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ये फंक्शन लाइन कॉल होगी, है ना, जैसे ही सम एक्स वाई होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जैसे ही सम एक्स वाई कॉल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जब x की वैल्यू जो है वो a में चली जाएगी, y की वैल्यू b में चली जाएगी, है ना। x की वैल्यू a में चली जाएगी, y की वैल्यू b में चली जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू 3 है।
तो यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये रिटर्न कर देगा 2 + 3 5। जो ये वैल्यू रिटर्न करता है ना वो ही यहाँ पर आ जाती है, तो वो z में चली जाती है ना। इसी तरह से फंक्शन जो है वर्क करते हैं, ठीक है। आप इस पर आज काफी प्रैक्टिस करना है ना, इस पर आज काफी प्रैक्टिस करोगे तो है, मैं आपको एक दिन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आपको बताना करना, हमें डायरेक्ट जो है रिकर्शन पढ़ना था, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, दिट वाज ऑफ द 11th सिलेबस, बट टू एक्सप्लेन रिकर्शन आई हैड टू कवर दिस, ठीक है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आपको ये सब चीजें पहले से आती हो, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि रिकर्शन हमको पढ़ना था, लेकिन रिकर्शन तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक ये कवर ना कर लें। मैंने आपके लिए कवर कर दिया कि कैसे एक फंक्शन बनाते हैं और कैसे वो फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। आप खुद से आज ट्राई करना, तभी आपको रिकर्शन समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, वहां से आप हटा सकते हो, ठीक है, आप ए बी भी लिख सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। ऊपर वाले में से आप है ना लिख दो, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप लिख दो, बाकी आप हटा के लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे भी लिख दो, सेम ही चीज है ना। ए बी को यहाँ से हटा भी सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये ध्यान में रखो कि ठीक है, सेम वाली लाइन आप ऊपर कॉपी कर दोगे, ठीक है। हटाओगे तो भी सही है ना, तो अगर आपको समझना हो बुक में, क्योंकि एग्जाम्पल्स है, तो अगर आपको हटा हुआ दिखे तो भी समझ जाना कि कोई बात नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सम फंक्शन कॉल करता है। अब देखो कैसे होता है वर्क, यहाँ पर देखो जैसे ही लाइन आएगी ना, वैसे ही मैंने पहले एक्सप्लेन करे थे, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये लाइन कॉल होगी तो क्या होगा, z इज इक्वल टू सम 2,3 है ना, यही चीज होगी। z इज इक्वल टू सम, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो सम 2,3। जैसे ही सम कॉल होगा ना, वैसे ही जो है यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, है ना, यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या करेगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या करेगा, रिटर्न, ये कर देगा रिटर्न 5। जैसे ये रिटर्न 5 करेगा ना, तो z में आपके पास 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू एक तरह से 5 होगी सम एक्स वाई की, तो रिटर्न का मतलब होगी कि इसकी वैल्यू होगी, तो ये z इक्वल टू 5 आ जाएगा, फिर आप z इक्वल टू 5 प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो ये मैंने एक सम का प्रोग्राम बनाया अपना, कि सम का प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम बना के बता देता हूं कि कैसे स्ट्रिंग लेंथ का आप यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। फिर कल हम रिकर्शन करेंगे। हाँ हाँ, रख दो, ठीक है। तो देखो अब जो है मैं आपको स्ट्रिंग लेंथ का बनाकर बताता हूँ कि स्ट्रिंग लेंथ खुद से बनाएंगे ना, अपन ने अभी तक कॉल किया था, अभी खुद से बनाकर देखते हैं कि वो कैसे बनता है, और फिर हम रिकर्शन देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, इसकी फोटो वगैरह खींच लिया करो। देखो अब हम देखेंगे कि हमने क्या देखा, कि जो हमारा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन था वो वाला हम बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर से मैंने लिखा हैश इंक्लूड, और यहां पर चलो मैं कॉनियो लिख देता हूं, कभी कभी लिख देना चाहिए, और ऊपर लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.conio.h, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो उसकी मैं जगह छोड़ देता हूं, यहां पर मैंने कर दिया void, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया अपना मेन फंक्शन, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया कोई सी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने ले ली ऐसे स्ट्रिंग ले ली s इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया आपका nbf, ठीक है, और मैंने लिख दिया nbf स्कूल SCHOOL, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे को इसकी लेंथ प्रिंट करनी है कि s की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे, देखो ऐसे प्रिंट करेंगे, मैं सीधा सा ये लिख देता हूं PRINTF, यहाँ पर %d, और मैंने जो स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है ना वो वाला strlen है मेरा, और इसमें मैंने s पास कर दिया, ठीक है। और ये जो है मेरा गेट ch करके, और ये जो है मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो यही काम होता था ना, यहाँ पर मैं क्योंकि strlen s करा है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, string.h करना पड़ता था, ठीक है। ये आपको पता ही है कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, इसकी लेंथ जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यही काम करता है कि ये जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब ये फंक्शन है string.h के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। ये फंक्शन जो है string.h के अंदर लिखा है, बट नाउ आई वांट टू मेक माय ओन फंक्शन, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना खुद का फंक्शन बनाना है। मुझे स्ट्रिंग डॉट एच मैंने इंक्लूड नहीं करी है, मुझे खुद का फंक्शन बनाना है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है कि इंटीजर जो है रिटर्न करता है, लेंथ तो इंटीजर ही होती है, और लेता क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर लेता है ना। तो देखो वही चीज अपन कर देते हैं यहाँ पर कि वो जो है ऊपर लिख देते हैं। तो नीचे फंक्शन मेरा क्या होगा, इंटीजर, ये वाला strlen, और ये मैंने ले लिया आपका कैरेक्टर पॉइंटर। आपका s था, s भी ले सकते हो आपने, मैंने जैसे a ले लिया ना। और ये मेरा एक नया फंक्शन जो है मैं बना रहा हूं यहाँ पर। अब यही फंक्शन ऊपर कॉपी कर दो ना ऐसे ही, इंटीजर, और यहाँ मैंने लिखा strlen, और यहाँ पर लिख दो आप वही कैरेक्टर पॉइंटर। a लिखना है तो a लिखा दो, नहीं तो कैरेक्टर पॉइंटर लिख के ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये आ गया, ये ऊपर मैंने एक लाइन कॉपी कर दी। अब मेरे को देखो लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने का लॉजिक क्या होगा ना, अब देखो, क्योंकि हमने देखा था कि लेंथ कैसे होगी, जैसे शुरू का आप एक एग्जांपल ले लो एनबीएफ का ना, फिर वो सेम ही चीज उसके लिए भी हो जाएगी ना। छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एनबीएफ मैंने ले लिया, ठीक है। एनबीएफ की मेरे को लेंथ पता करनी, कितनी है लेंथ, 3 है ना। तो कैसे होगा, देखो ये एक एरे क्रिएट होगा पहले तो, जिसमें क्या होगा, आपका एक एन होगा, एक बी होगा, एक एफ होगा, और लास्ट में आपके नल कैरेक्टर होगा। हमको एनबीएफ की लेंथ चाहिए, वो 3 होती है ना, तो वो देखेंगे कैसे होगी। तो देखो मैं क्या करूंगा कि मैं एक दोबारा से एक वेरिएबल लूंगा इसके अंदर, इंटीजर आई, ठीक है। अब देखो लेंथ का मैं खुद से फंक्शन बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने ले लिया, या केवल आई ही ले लो क्योंकि फॉर लूप में इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम। अब मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, और तब तक जो है लूप चलेगा जब तक कि a ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ऐसे ही लिखते हैं, a ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जो है नल कैरेक्टर है ना, इस तरह से ये नल कैरेक्टर होता है, और ये आपका प्लस प्लस आई हो गया, ठीक है। ये मतलब क्या करना है आपको, i इक्वल टू 0 से, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है ना। आपको i इक्वल टू 0 से चलना है, और तब तक चलना है कि जब तक आपका a ऑफ आई नल कैरेक्टर नहीं है ना। तो ये वाला भी चल जाएगा, ये वाला भी चल जाएगा, ये वाला भी चल जाएगा। जब नल कैरेक्टर आएगा तो रुकना है, ठीक है। इसका मतलब होगा नल कैरेक्टर पर आप रुक जाओगे, और तब तक आपको चलना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते चले जाओगे कि जैसे आपको चलना है, फिर आप जो है प्लस प्लस आई, ये अपने आप ही चल रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, है ना। बस ये आप करते चले जाओगे, इसमें कुछ भी मत लिखो ना, इसमें आप कुछ भी मत लिखो, ये चलता चला जाएगा। तो देखो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपका i इक्वल टू 0 हुआ, ये नल नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका i इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला चेक हुआ, ए आई नॉट इक्वल टू 0, हाँ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब अंदर चले जाओ, अंदर कुछ नहीं है, तो फिर है लास्ट में आपका प्लस प्लस आई हो जाएगा। तो प्लस प्लस आई का मतलब हो गया आई इक्वल टू आपका 1 हो गया, ठीक है। और वापस 1 हुआ, आई इक्वल टू 1, वापस से चेक किया क्या ये नल कैरेक्टर है, नहीं ये नल कैरेक्टर नहीं है, तो वापस से अंदर जाएगा, अंदर कुछ नहीं है, फिर लास्ट में प्लस प्लस आई होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर i की वैल्यू 2 हो गई, वापस ऊपर आया, इसने चेक करा क्या a ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है, हाँ बोले a ऑफ 2 जो है नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो वापस अंदर जाएगा, वापस अंदर जाएगा तो प्लस प्लस आई करेगा, तो i की वैल्यू जो है आपकी 3 हो गई, ठीक है। अब i की वैल्यू 3 आ गई, ऊपर आया, चेक करा क्या a ऑफ 3 नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, नहीं, अब ये सच नहीं है, क्योंकि जो a ऑफ 3 जो है आपका वो नल कैरेक्टर है ना, a ऑफ 3 आपका नल कैरेक्टर है। तो जैसे ही आपका a ऑफ 3 नल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपकी i की वैल्यू 3 रह जाएगी। अब देखो i की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 3 हैं, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, नीचे रिटर्न कर दूंगा i, ये कर दूंगा रिटर्न i, ठीक है। बस ये आपका फंक्शन हो गया, और ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है कि कैसे फॉर लूप काम करता है ना, एक एक चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद से ट्राई करो ना, ये सारी चीजें मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से जो है ये लूप काम करेगा, ठीक है। ये जो है आई रिटर्न आई की वैल्यू लास्ट में 3 हो जाएगी, 3 इसकी लेंथ होती है, तो ये रिटर्न आई कर देगा, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा फंक्शन जो है लेंथ का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये छोटा सा ही फंक्शन होता है लेंथ का, ठीक है। तो ये जो है आपने इस तरह से जो है अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं। तो यू हैव सीन दैट आई हैव नॉट यूज्ड द लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। द फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द स्ट्रिंग डॉट एच, दैट फंक्शन, द सेम फंक्शन आई हैव नॉट यूज्ड, आई हैव क्रिएटेड माय ओन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। I have created my own string len function that is a user defined function, ठीक है, in the same way.
So this is the same, just use a for loop and go till that there is not a null character, ठीक है। जब तक null character नहीं है तब तक चलते चले जाओ, जब null character आएगा रुक जाओ। i की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ही होती चली जाती है, i की वैल्यू जो है लास्ट में 3 आ जाएगी null character की, है ना। वही चीज देखो, लास्ट में जो आपकी i की वैल्यू आएगी ना वही आंसर होगा। जैसे NBF स्कूल लेकर चलो, NBF फिर एक स्पेस है SCHOOL, है ना, ये आपका NBF स्कूल है, ये आपने लिया, और ये जो है आपका लास्ट में नल कैरेक्टर है। अब देखो NBF स्कूल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसकी लेंथ, है ना। अब इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब जो नल कैरेक्टर की जो इंडेक्स होगी वही आपकी लेंथ होगी, और वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो जो नल कैरेक्टर की जो इंडेक्स होती है, नल कैरेक्टर की जो इंडेक्स होती है वही आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। और हमने फॉर लूप में यही किया है कि हम लास्ट से शुरू से लास्ट तक चलते रहे जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। लास्ट में आई की वैल्यू जो है वो नल कैरेक्टर को बताएगी, तो वही जो है आपकी लेंथ भी होगी। तो ये हमने प्रोग्राम कर लिया, ठीक है। ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस देख लिए हैं, अब आप इसको खुद से करना, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिकर्शन का एक प्रोग्राम आपको बता देता हूँ, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो फिर ताकि हम आगे से स्टार्ट करें, तो देखो अब मेरे को फंक्शन क्रिएट करना है हमारा फैक्टोरियल का, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट करना है। फैक्टोरियल आप समझते हो क्या होता है? फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता ना तो देखो ऐसे होता है कि फंक्शन, अगर एक फैक्टोरियल एक फंक्शन है ना, उसमें अगर मैं 0 डालूंगा तो वैल्यू आती है 1। फैक्टोरियल एक फंक्शन होता है ना, फैक्ट की जगह फैक्टोरियल लिख देता हूं पूरा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है ना। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है बेसिकली, है ना हमको फैक्टोरियल का। तो देखो फैक्टोरियल फंक्शन करता क्या है पहले तो पता चले जब बनाएंगे फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 0, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 0, और फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू होता है आपका 1 इंटू 2, ठीक है, पीछे चलता चला जाता है। फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू होता है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, और फैक्टोरियल 4 आपका होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। इसी तरह से चलते हैं। फैक्टोरियल 4 आपका मतलब 1 से 4 तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको फैक्टोरियल 4 दे देगा ना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो क्या होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, वो कितना आ जाता है आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन होता है आपका, ठीक है, कि सारे नंबर जो भी नंबर आपका पास करवाओगे वहां से लेकर 1 से लेकर वहां तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो अब मेरे को इसका प्रोग्राम बनाना है, पहले मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बता देता हूं आपको, और फिर कल जो है हम इसका रिकर्शन करेंगे, ठीक है। आप तीनों प्रोग्राम आज खुद से करना और फिर हम कल इसका रिकर्शन करेंगे, ठीक है। तो देखो अब वही है, मेरे को फैक्टोरियल के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं इंटीजर, फैक्टोरियल ना लिखकर मैं छोटा सा फैक्ट लिख देता हूं ना, और ये मैंने लिख दिया इंटीजर आपका n, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पर लिखा इंटीजर n, और फिर मैंने लिखा scanf %d and then I write %n. So this way I can now enter the value of n via keyboard, ठीक है। So from here आउटपुट विंडो पर क्या होगा, आपको n की वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। ऑन द आउटपुट विंडो यू हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ n इन दिस वे, ठीक है। सो आई कैन एंटर 1, आई कैन एंटर 2, आई कैन 3 4 5, आई कैन राइट एनी नंबर हियर, ओके, आई कैन एंटर एनी नंबर, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई वांट टू printf %d, and here I will write fact of n. So now it will print the factorial of n, ठीक है। So it will print the factorial of n, get ch, here I will close. So this is my void function, and suppose now on the output window I enter 5, so it will print 120, ठीक है। When I will enter 6, it will print 720, when I will enter 4, it will print 24, okay। So this way it will work, ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन। नाउ आई हैव टू मेक ए यूजर डिफाइंड फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ फंक्शन इंटीजर एंड फैक्ट इंटीजर n, ओके।
and this. Instead of n I can write any variable. Okay, is the same not, ठीक है. This n is different than this n, ठीक है. ये जो दोनों n है बहुत अलग अलग है, ठीक है. आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ. अगर मैंने यहाँ n लिया है तो ठीक है, यहाँ मैंने a कर दिया, ठीक है. यहाँ मैंने n लिया, यहाँ मैंने a कर दिया. तो इंटीजर फैक्ट इंटीजर a. अब मेरे को फैक्टोरियल निकालना है. फैक्टोरियल निकालना है तो देखो कैसे करेंगे. मैंने लिखा इंटीजर, सबसे पहले मेरा जो आंसर है मैंने कहा आंसर इज इक्वल टू 1, ठीक है. आंसर इज इक्वल टू 1. अब नाउ फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू आपका ये लेस देन इक्वल टू n और प्लस प्लस i, ठीक है. एंड मैंने लिख दिया फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू आपका i, ठीक है. और ये आपका बंद हो गया. फिर मैंने लिख दिया रिटर्न, रिटर्न मैंने कर दिया आपका आंसर, ठीक है. अब देखो ये कैसे काम करेगा, ये बस है. अब ये जो है आपका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा, ठीक है. देखो इसको फटाफट ये कैसे काम करेगा. सपोज मैंने 3 डाला, आपको पता है फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया आपका 6, है ना. फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है. अब इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन सही काम कर रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले मेरा जो है यहाँ पर मैंने कॉल करा फैक्ट 3, यहाँ पर आया है ना. यहाँ पर जो है आपकी a की वैल्यू कितनी है, आपकी 3 है. यहाँ पर आए आंसर आपका कितना है, आंसर इज इक्वल टू आपका 1 है. फिर मैंने i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n पर गया, ठीक है. तो मैं गया यहाँ पर, मेरे पास सबसे पहले ये लूप चलेगा 3 बार, है ना. तो देखो क्या क्या होता चला जाएगा. पहले तो होगा आंसर इज इक्वल टू आंसर जो कि 1 है 1 इंटू 1, ठीक है. फिर दोबारा क्या हो जाएगा आपका आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 2, ठीक है. फिर आपका हो जाएगा आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 3. तो ये इस तरह से काम करेगा. पहली बार में क्या होगा आपका आंसर 1 होगा. ये लूप कितनी बार चलेगा, देखो 1 से n तक चल रहा है, ये लूप चलेगा 3 बार, है ना. n की वैल्यू आपकी 3, तो ये लूप चलेगा. यहाँ पर a लिखना है मेरे को ना, क्योंकि मैंने a ही लिया है तो यहाँ पर मेरे को a लिखना है, ठीक है. i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू a प्लस प्लस i. अब a की जितनी भी वैल्यू होगी लूप उतनी बार चलेगा ना. a की वैल्यू 3 है तो ये लूप चलेगा i इक्वल टू 1 i इक्वल टू 2 और i इक्वल टू 3 के लिए. और हर बार जो है ये आंसर में मल्टीप्लाई करता चला जाएगा. तो पहले आंसर में मल्टीप्लाई होगा आपका 1 का, फिर दोबारा लूप चलेगा तो 2 का होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा तो 3 का होगा. तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6. ये रिटर्न कर देगा आंसर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है. अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, हमारे पास टाइम जो है खत्म हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना. हाँ, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कल रिकर्शन देखेंगे. फटाफट खींच लो फोटो. चलो ये हमारा हो गया है ना. अब कल हम देखेंगे रिकर्शन. तो आज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, तभी आपको रिकर्शन आएगा. ये फैक्टोरियल वाला कर लेना, बाकी दोनों कर लेना. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको रिकर्शन समझ में आएगा, ठीक है. चलो.